ایک ایسا ملک جسے دنیا گریو یارڈ آف ایمپائرز کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسی زمین جہاں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتیں آئیں مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکی۔ برٹش امپائر، سوویت یونین اور امریکہ سب نے افغانستان کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ نتیجہ ایک ہی نکلا، شکست۔ لیکن آج افغانستان ایک اور جنگ کا میدان نہیں، آج یہ ملک اپنی تاریخ کا سب سے مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف طالبان کی حکومت، دوسری طرف آئیسس کے خوفناک حملے، کہیں بھوک سے تڑپتے ہوئے لوگ، کہیں بے روزگاری اور گرتی ہوئی اکانومی، پانی کی کمی، کلائمیٹ چینج اور سیاسی تنہائی نے اس ملک کو ایک ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا جہاں سے ہر گزرتا دن لوگوں کے لیے اور مشکل ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کہانی کا اثر صرف افغانستان تک محدود نہیں۔ پاکستان، جو افغانستان کے ساتھ لگ بھگ 2600 کلومیٹر لمبی سرحد شیئر کرتا ہے، آج اس کرائسس کا سب سے بڑا اثر محسوس کر رہا ہے۔ بارڈر کلیشز، TTP کے حملے، ٹریڈ کی بندش اور لاکھوں افغان ریفیوجیز نے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میرا نام ہے جبار امیر، پلیز سبسکرائب ضرور کریں۔ کیا طالبان واقعی ملک کو سنبھال رہے ہیں یا افغانستان دھیرے دھیرے ایک اور تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ آج ہم صرف ہیڈ لائن کی بات نہیں کریں گے، ہم افغانستان کی پوری کہانی سمجھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کیسے ایک وقت تھا جب کابل ایشیا ماڈرن شہروں میں شمار ہوتا تھا، یونیورسٹی آباد تھیں، فورن ٹورسٹ افغانستان گھومنے آتے تھے اور لوگوں کو ایک بہتر مستقبل کی امید تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ سب کچھ بکھر گیا؟ کیوں برٹش فیل ہوا؟ کیوں سوویت یونین ہار گئی؟ اور کیوں امریکہ 20 سال اور اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی طالبان کو روک نہیں سکا؟ اور سب سے اہم بات، ہم دیکھیں گے کہ 2026 کے افغانستان اصل میں کیسا ہے۔ میڈیا میں جو تصاویر نظر آتی ہیں اس سے کتنا زیادہ پیچیدہ اور کتنا زیادہ خطرناک ہے۔ کابل کا گرنا، 15 اگست 2021، صرف کچھ ہفتوں پہلے تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا 20 سال تک چلنے والی حکومت اتنی جلدی گر سکتی ہے۔ امریکہ اور اس کے ساتھی ملکوں نے لگ بھگ 2 دہائیوں تک افغانستان میں جنگ لڑی، افغان آرمی کو ٹرین کیا، ماڈرن ہتھیار دیے اور بلین آف ڈالر خرچ کیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ طالبان کو دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا، لیکن حقیقت بالکل مختلف تھی۔ 2021 کے دوران جب امریکہ نے اپنی فوج نکالنے کا فیصلہ کیا، طالبان نے پورے ملک میں اپنی کیمپین تیز کر دی۔ ایک کے بعد ایک ضلع، پھر شہر اور پھر پورے صوبے ان کے قبضے میں آ گئے۔ صرف 10 دن کے اندر افغانستان کا نقشہ بدل گیا۔ 6 اگست کو پہلا کیپٹل گرا، اس کے بعد ہر روز ایک نیا شہر طالبان کے قبضے میں آتا گیا، اور پھر 15 اگست کا دن آیا۔ طالبان کابل کے باہر پہنچ چکے تھے، شہر میں افراتفری مچ گئی، لوگ ATM مشین کے باہر لمبی قطاریں لگا کر اپنی زندگی کی جمع پونجی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، سرکاری اداروں میں کام رک گیا، پولیس غائب ہوگی، ہر شخص صرف ایک سوال پوچھ رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ اسی درمیان پریزیڈنٹ اشرف غنی ملک چھوڑ کر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد حکومت عملی طور پر ختم ہو گئی۔ طالبان کے فائٹرز بنا کسی بڑی جنگ کے کابل میں داخل ہو گئے۔ صرف چند گھنٹوں میں افغانستان کی پوری سیاسی تصویر بدل چکی تھی، لیکن اصل منظر اب شروع ہوا۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ طالبان کے خوف سے بچنے کے لیے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف بھاگنے لگے۔ کسی کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھا، کسی کے پاس صرف ایک چھوٹا سا بیگ، اور کئی لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کو صرف ایک امید تھی، کسی طریقے سے افغانستان سے نکلا جائے۔ ایئرپورٹ کے باہر اتنا ہجوم تھا کہ لوگ دیواروں پر چڑھ رہے تھے، گیٹس توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور فورن سولجرز سے مدد کی درخواست کر رہے تھے۔ کچھ والدین نے اپنے بچوں کو تاروں کے اوپر سے فورن سولجرز کے حوالے کر دیا، اس امید میں کہ کم از کم ان کے بچوں کی زندگی بچ جائے گی۔ دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا جو شاید تاریخ کی سب سے دکھ بھری تصاویروں میں شمار ہوگا۔ کچھ لوگ امریکن ملٹری ایئر کرافٹ کے باہر لٹک گئے، صرف اس امید میں کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں گے، لیکن جب جہاز نے پرواز کی وہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے نیچے گر گئے۔ یہ تصاویریں صرف افغانستان کی نہیں بلکہ پوری 20 سال کی جنگ کی ناکامی کی علامات بن گئیں۔ اگلے 17 دنوں تک کابل ایئرپورٹ دنیا کے سب سے مشہور ایئرپورٹس میں سے ایک بن گیا۔ امریکہ اور اس کے الائز نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ایویکویشن آپریشن شروع کیا، لگ بھگ 1,23,000 لوگوں کو
हवाई रास्ते से अफगानिस्तान से निकाला गया, मगर हर किसी को ये मौका नसीब नहीं हुआ। हजारों अफगान जो फॉरेन फोर्सेस के साथ काम कर चुके थे एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं सके या उनके डॉक्यूमेंट मुकम्मल नहीं थे। जब इवैक्यूएशन अपने आखिरी मरहले में था, 26 अगस्त 2021 को एक और हादसा हुआ जिसने सब कुछ और भी दर्दनाक बना दिया। आईसिस के एक सुसाइड बॉम्बर ने अबे गेट के करीब खुद को उड़ा दिया। इस हमले में दर्जनों अफगानी सिविलियंस और 13 अमेरिकन सर्विस मेंबर हलाक हुए। ये हमला याद दिला रहा था कि तालिबान के वापस आने का मतलब अफगानिस्तान में अमन का कायम होना नहीं है। 30 अगस्त 2021 को आखिरी अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट काबुल से उड़ गया और इसके साथ ही अमेरिका की 20 साल लंबी जंग खत्म हो गई। लेकिन अफगानिस्तान की कहानी खत्म नहीं हुई। हकीकत में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। तालिबान जीत गए लेकिन अफगानिस्तान हार गया। तालिबान ने काबुल पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन सिर्फ चंद हफ्तों बाद ही एक नया सवाल उठना शुरू हो गया। जंग जीतना और मुल्क चलाना क्या दोनों एक ही बात है? अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसकी इकॉनमी अपने पांव पर खड़ी ही नहीं थी। 2 दहाइयों तक मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेन एड पर चल रहा था। स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस, पुलिस और अफगान आर्मी, इस सब को चलाने के लिए बाहर से पैसे आते थे। जब तालिबान ने हुकूमत संभाली तो ये पैसे लगभग एक रात में ही रुक गए। अमेरिका और कई वेस्टर्न मुल्कों ने डेवलपमेंट एड सस्पेंड कर दी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने फंडिंग रोक दी। अफगान सेंट्रल बैंक के अरबों डॉलर के एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया। अचानक हुकूमत के पास मुलाजमीन की तनख्वाह देने, प्रोजेक्ट चलाने और इकोनॉमी को संभालने के लिए जरूरी रिसोर्सेज बहुत कम हो गए। इसका असर फौरन नजर आया। बैंक्स के बाहर लंबी कतारें लग गईं। लोग अपनी ही जमा पूंजी नहीं निकाल पा रहे थे। कई बिजनेसेस बंद होने लगे। बाजारों में खरीदने वाले कम और बेचने वाले ज्यादा हो गए। रोजगार के मौके तेजी से खत्म होने लगे। सोचिए, अगर कल सुबह पाकिस्तान में तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कहा जाए कि तनख्वाह का कोई पता नहीं, बैंक से पैसे निकालना मुश्किल हो जाए और हजारों बिजनेस बंद हो जाएं, तो इकोनॉमी पर क्या असर होगा? अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिर्फ चंद महीनों में लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। कई घरों में दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना रह गया। कुछ इलाकों में लोग अपना सामान, जमीन और जानवर बेचने लग गए सिर्फ इसलिए कि घर का चूल्हा जल सके। इसी दौरान अफगानिस्तान के कुछ इलाके दुनिया भर की मीडिया की नजरों में आए। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे गांवों का जिक्र हुआ जहां लोगों ने अपने किडनियां बेचकर कर्ज उतारे या बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की। डॉक्टर्स और एड ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि शदीद गुर्बत ने इलीगल ऑर्गन ट्रेड को और हवा दी। ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका था। इसी तरह कई ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया कि कुछ फैमिलीज मजबूरी में अपनी बेटियों की कम उम्र में शादी कर रही हैं या उनके मुस्तकबिल के बदले पैसे ले रहे हैं। ये रिपोर्ट्स अफगानिस्तान की गुर्बत की गहराई को दिखाती हैं। इस सब के दरमियान तालिबान का कहना था कि सैंक्शंस और इंटरनेशनल आइसोलेशन ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ बहुत से मुल्क और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि तालिबान की पॉलिटिक्स खासकर औरतों और तालीम के हवाले से अफगानिस्तान की तन्हाई और इकोनॉमी प्रॉब्लम को और बढ़ा सकती हैं। तालिबान 2.0 क्या वाकई ही कुछ बदला है? जब तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा किया तो उन्होंने दुनिया के साथ एक नया पैगाम शेयर किया। उनका कहना था, इस बार हम पहले वाले तालिबान नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि औरतों को इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंदर राइट मिलेंगे, मीडिया को आजादी दी जाएगी और अफगानिस्तान किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। कई लोगों को उम्मीद थी कि शायद 1996 वाले अफगानिस्तान दोबारा नहीं लौटेगा, लेकिन वक्त गुजरता गया और उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। सबसे पहले असर तालीम पर पड़ा। लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल को बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी में भी उनकी तालीम पर पाबंदियां लगा दी। हजारों टीचर्स और स्टूडेंट जो एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहे थे अचानक घरों तक महदूद हो गए। ये सिर्फ एक स्कूल बंद होने की बात नहीं, ये पूरी नस्ल की मुस्तकबिल की बात है। इसका असर सिर्फ स्टूडेंट तक महदूद नहीं रहा। कई फीमेल टीचर्स अपनी जॉब से महरूम हो गयी। कई NGOs ने अपने प्रोजेक्ट बंद कर दिए क्योंकि उनमें औरतों का काम
काम जरूरी था। हेल्थ केयर सेक्टर भी मुतासिर हुआ, खासकर उन इलाकों में जहां खवातीन सिर्फ फीमेल डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद करती हैं। यूनाइटेड नेशंस और कई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इन पाबंदियों को बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। तालिबान की पॉलिसी सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं, मीडिया पर भी सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। कई जर्नलिस्ट ने मुल्क छोड़ दिया, कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट बंद हो गई, जबकि जो बाकी बचे उन्हें भी सख्त कवानीन के अंदर काम करना पड़ा। सोशल मीडिया ने कुछ आवाजों को जिंदा रखा, मगर अफगानिस्तान के अंदर खुलकर तनकीद करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर बात आती है मोरालिटी पुलिस की। तालिबान के ऑफिसर्स मुख्तलिफ इलाकों में ड्रेस कोड, पब्लिक बिहेवियर और दूसरे कवानीन पर नजर रखते हैं। औरतों के लिए हिजाब और सफर के कवानीन सख्ती से लागू किए गए, जबकि मर्दों के लिए भी नमाज, दाढ़ी और लिबास के हवाले से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी गई। इन तमाम तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। तालिबान का पहला दौर यानी 1996 से 2001 के मुकाबले में आज का अफगानिस्तान में टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। इंफॉर्मेशन को पूरी तरह कंट्रोल करने पहले जैसा आसान नहीं रहा। अफगानिस्तान के अंदर से वीडियोस, तस्वीरें और रिपोर्ट रोज दुनिया तक पहुंचती हैं। इसी वजह से तालिबान पर इंटरनेशनल प्रेशर भी पहले से ज्यादा है। लेकिन एक और खतरा भी मौजूद है और वो है आईसिस के। बहुत से लोग समझते हैं कि तालिबान और आईसिस के एक ही चीज हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी मुख्तलिफ है। दोनों ग्रुप्स की आइडियोलॉजी में कुछ मुश्तरका पहलू जरूर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। आईसिस के तालिबान को बहुत सॉफ्ट समझते हैं। तालिबान आईसिस के को अपनी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज समझते हैं। इसीलिए 2021 के बाद अफगानिस्तान में कई खौफनाक बम धमाके हुए। मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल और पब्लिक गैदरिंग सब निशाना बनते रहे। यानी तालिबान ने जंग जीत ली, लेकिन अमन अभी तक नहीं जीत सके। और इस सब के दरमियान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हमसाया पाकिस्तान। अफगानिस्तान की कहानी पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। दोनों मुल्कों की तकदीर एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई है कि जब अफगानिस्तान में कुछ होता है तो उसका असर अक्सर पाकिस्तान में भी महसूस होता है, चाहे वो रेफ्यूजीज हो, ट्रेड हो या सिक्योरिटी। लेकिन 2021 में जब तालिबान दोबारा हुकूमत में आए, पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों का ख्याल था कि अब वेस्टर्न बॉर्डर ज्यादा पुरअमन हो जाएगा। तालिबान पाकिस्तान के लिए एक कोऑपरेटिव पड़ोसी साबित होंगे और बॉर्डर पर हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगले चंद सालों में तस्वीर मुख्तलिफ नजर आई। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के हमले फिर से बढ़ने लगे। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग टीटीपी और अफगान तालिबान को एक ही ग्रुप समझते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी लीडरशिप अलग है, उनके ऑब्जेक्टिव भी मुख्तलिफ हैं। अफगान तालिबान अफगानिस्तान पर हुकूमत करते हैं, जबकि टीटीपी के का मकसद पाकिस्तान के अंदर अपना निजाम कायम करना है। लेकिन इन दोनों ग्रुप के दरमियान तारीखी और आइडियोलॉजिकल ताल्लुकात रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान बरसों से ये इल्जाम लगाता रहा है कि टीटीपी के कुछ फाइटर्स अफगान टेरिटरी से ऑपरेट करते हैं। तालिबान इस इल्जाम को मुख्तलिफ अंदाजों में रिजेक्ट या कम अहमियत देते रहे हैं। यही से इन दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बढ़ता गया। पाकिस्तान को मौकिफ था कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो इसका जवाब देना जरूरी है। तालिबान का कहना था अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का एहतराम किया जाना चाहिए। नतीजा बॉर्डर पर फायरिंग, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन और डिप्लोमेटिक तनाव। इस तनाव का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रोजाना होने वाली तिजारत मुतासिर हुई। कई मरतबा बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी गई, ट्रक ड्राइवर दिनों तक इंतजार करते रहे और अफगानिस्तान जिसकी इकोनॉमी पहले ही बहुत कमजोर थी उस पर मजीद बोझ पड़ता गया। फिर बात आती है रेफ्यूजीज। सोवियत इन्वेजन से लेकर आज तक पाकिस्तान ने लाखों अफगान रेफ्यूजीज को पनाह दी। कई अफगान फैमिलीज ने पाकिस्तान में अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा, लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते गए। इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत ने अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। बहुत से अफगान शहरी वापस अफगानिस्तान भेजे गए। पाकिस्तान का कहना था कि हर मुल्क अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी लागू करने का हक रखता है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
نے इस बात पर तशवीश का इजहार किया। अफगानिस्तान की मौजूदा हालात में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की वापसी मुश्किल पैदा कर सकती है। एक तरफ पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी कंसर्न है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और इन दोनों के दरमियान फंसे हुए हैं आम इंसान। लेकिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ टीटीपी का चैलेंज नहीं, अफगानिस्तान में आईसिस की मौजूदगी भी इस्लामाबाद के लिए फिक्र का सबब है। अगर अफगानिस्तान और ज्यादा अनस्टेबल होता है तो उसका असर सिर्फ काबुल तक महदूद नहीं रहेगा, इसका असर पेशावर, क्वेटा और शायद इस्लामाबाद तक भी महसूस हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में अफगानिस्तान हमेशा एक सेंट्रल पोजीशन रखता है। एक स्टेबल अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है और एक अनस्टेबल अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज है। लेकिन पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं जो अफगानिस्तान को गौर से देख रहा है। एक और सुपर पावर धीरे धीरे अफगानिस्तान में अपनी जगह बना रहा है, चाइना। बीजिंग अफगानिस्तान को सिर्फ सिक्योरिटी के एंगल से नहीं देखता, उसकी नजर अफगानिस्तान के रेयर मिनरल्स, कॉपर, लिथियम और रीजनल कनेक्टिविटी पर भी है। दूसरी तरफ रशिया भी तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। ईरान भी अपने मफादात के मुताबिक अफगानिस्तान में असर रखता है। यानी अफगानिस्तान एक बार फिर से दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरों में आ चुका है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं, सियासत, ट्रेड, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस की भी है। अब सवाल ये है, क्या अफगानिस्तान इस बार अपनी तकदीर बदल पाएगा या फिर एक और दफा सुपर पावर्स के दरमियान फंस कर रह जाएगा? अफगानिस्तान का फ्यूचर। एक वक्त था जब अफगानिस्तान को एशिया का क्रॉसरोड कहा जाता था। आज दुनिया के बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या अफगानिस्तान कभी दोबारा खुद अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के सामने सिर्फ एक या दो चैलेंज नहीं बल्कि कई बड़े चैलेंजेस साथ ही खड़े हैं। सबसे पहला चैलेंज है इकोनॉमी। तालिबान के कब्जे के बाद कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी जरूर देखने को मिली। करेंसी कुछ हद तक स्टेबल हुई, टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हुआ और करप्शन के कुछ पहलुओं पर तालिबान ने सख्ती दिखाई। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल सैंक्शंस, लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एड में कमी की वजह से इकोनॉमी अब भी बहुत कमजोर है। प्राइवेट सेक्टर छोटा है, फैक्ट्रीज कम है, यानी अफगानिस्तान के पास जवान आबादी तो है लेकिन उनके लिए जॉब्स नहीं। दूसरा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। अफगानिस्तान उन मुल्कों में शामिल होता है जहां क्लाइमेट चेंज का असर बहुत ज्यादा है। बारिशों का पैटर्न बदल रहा है, ड्राउट ज्यादा आ रहा है, कई इलाकों में पानी की कमी खेती को मुतासिर कर रही है और जब जमीन कम पैदावार देगी तो भूख और गुर्बत मजीद बढ़ेगी। तीसरा चैलेंज है ब्रेन ड्रेन। पिछले कई सालों से हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और स्किल्ड प्रोफेशनल अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। जो मुल्क पहले ही स्किल्ड वर्कर की कमी का शिकार था, उसके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। हर डॉक्टर या इंजीनियर जो मुल्क छोड़ता है, अफगानिस्तान पर उसका बहुत असर पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज शायद सिक्योरिटी ही रहेगा। तालिबान हुकूमत का दावा है कि उन्होंने मुल्क में अमन कायम किया है, मगर आईसिस के अब भी हमले करता रहा है। हर सक्सेसफुल अटैक सिर्फ लोगों की जान ही नहीं लेता बल्कि तालिबान की क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज करता है। और फिर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टेंशंस, ईरान के साथ पानी का मसला, ये सब अफगानिस्तान को एक मुश्किल रीजनल पोजीशन में रखते हैं। लेकिन इस तमाम तस्वीर को एक दूसरा पहलू भी है। अफगानिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मिनरल रिसोर्सेज में से एक रखता है, कॉपर, गोल्ड, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और लिथियम। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर कभी अफगानिस्तान में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ जाए तो ये रिसोर्सेज मुल्क की इकोनॉमी को बदल सकते हैं। फिलहाल अफगानिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल है। इसीलिए कुछ लोग अफगानिस्तान को मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहते हैं, एक ऐसा मुल्क जिसके पास बहुत कुछ है मगर जो उनसे फायदा नहीं उठा पा रहा। अफगानिस्तान की कहानी सिर्फ अफगानिस्तान की कहानी नहीं, ये पूरे साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट की कहानी है। और पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क नहीं, ये एक सिक्योरिटी चैलेंज भी है, एक इकोनॉमिक चैलेंज भी और एक ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज भी। जब अफगानिस्तान में अमन होता है तो उसका फायदा पाकिस्तान को भी मिलता है, ट्रेड बढ़ता है, बॉर्डर ज्यादा स्टेबल होता है
रेफ्यूजीज प्रेशर कम होता है, लेकिन जब अफगानिस्तान में क्राइसिस आते हैं तो उसकी लर्जिश पाकिस्तान पर जरूर पहुंचती है। इसीलिए इस्लामाबाद की हुकूमत को अफगानिस्तान के सिचुएशन पर नजर रखनी पड़ती है। आज तालिबान काबुल में बैठे हैं, अमेरिका जा चुका है, लेकिन अफगानिस्तान के मसाइल खत्म नहीं हुए। अब जंग की जगह भूख है, बेरोजगारी है, इंटरनेशनल आइसोलेशन है, आईसिस के का खतरा और पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई टेंशन भी। सबसे बड़ी बात, अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ने अपनी पूरी जिंदगी इसी कॉन्फ्लिक्ट में गुजारी है। एक बच्चा जो 2001 में पैदा हुआ, उसने अमेरिका की वॉर देखी, तालिबान की वापसी देखी, इकोनॉमिक कोलैप्स देखा और आज भी इन्हीं मसाइल में जी रहा है। शायद इसीलिए अफगानिस्तान को अक्सर द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। लेकिन असल सवाल ये है कि अफगानिस्तान सिर्फ एम्पायर का ग्रेवयार्ड है या अपने ही लोगों के ख्वाबों का भी। आज भी इस मुल्क में करोड़ों लोग एक बेहतर मुस्तकबिल का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां बच्चियां स्कूल जा सकें, जहां हॉस्पिटल चल सकें, जहां लोग अपने बच्चों को बचाने पर मजबूर ना हो, जहां किसी को सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपनी किडनियां ना बेचनी पड़े। लेकिन फिलहाल वो दिन बहुत दूर नजर आते हैं। अफगानिस्तान ने ब्रिटिश एम्पायर को देखा, सोवियत यूनियन और अमेरिका को भी देखा। सब आए और सब चले गए, लेकिन अफगानिस्तान के आम लोग आज भी वही हैं। वही पहाड़, वही जमीन और वही उम्मीद कि शायद एक दिन ये मुल्क सिर्फ जंग की वजह से नहीं बल्कि तरक्की की वजह से दुनिया की हेडलाइन में आएगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।